Yes, Priyanshu. Good afternoon, sir. So electrical engineering क्यों Priyanshu? Because of my field background, my father was also a mechanical. So I preferred that electrical because I know where some things before choosing that. किस तरीके की जॉब में जाना चाहते हैं? Sir, basically I want to prefer a material selection job in project sites company. ऑन साइट और ऑफ साइट में क्या फर्क है? On sites on which we go to the as a company give instructions to company give instruction to go and do their project, which we off sites also office work. कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंपनीज के बारे में बताओ कुछ. L&T है, Secure Matters है, and different Wipro है. परसेंटेज क्या चल रहा है प्रियांशु? सर अभी लास्ट फर्स्ट सेम का एग्जाम दिया था सर, उसके बाद में फिफ्थ सेम का अभी आना बाकी. फर्स्ट सेम का एग्जाम दिया जो? यस सर, उसमें 6.7 था सर. 6.7 सीजीपीए. बीटेक में क्या है? 9.7. 9.7 लास्ट सेमेस्टर में क्या एग्रीगेट है पूरे? नहीं, लास्ट सेमेस्टर में सर. ओके प्रियांशु. राइट. I am pursuing currently BTech from electrical engineering. My hobbies are cooking, playing cricket, etc. Okay. And what else? Yes, sir. What else? Sir, my good commands on my Python, basic Pythons. I will achieve certificates of Udemy courses, etc. And I also participate in the certain other activities like presentations in IEEE seminars. And I am currently doing as a contractor on a Wonder Cement plant on a earth mover and body repairing property. Okay, so when you pass out of Gitanjali, what do you want to become, Priyanshu? So I want to become a good engineer as a set up profile of my job as an electrical engineer in such company like L&T and Wonder Cements, etc. So what kind of work do you want to do as a electrical engineer? So I will give my 100% as a job, and electrical engineer is basically to perform its risky job because of your all the company or plant is controlled under the electrical. So it's a major job for. No, that's not my question. As an electrical engineer, what work? The electrical engineer can do different works, right? There are different jobs for electrical engineer. What job do you want to do as an electrical engineer? Yes, sir. My choice is I want to become a material selector, as a which types of material used to the construction of new sites and plant, which types of conductors and machines which can be used. So this is material selector. So what is this job called? So basically, I don't know that about, but it's a type of field in which we can our team will select the material for the construction purpose and different types of things. Okay, so how would you go about selecting? Supposing you become this electrical engineer in a company like L&T, and you're assigned to a project in which you have to select the electrical materials. So how would you go about selecting the electrical materials? So as the given project, we will firstly discuss about the load purpose, because the electrical is mainly depends on the load. So how the project plant have a load, so we can choose the conductors and the machines which we used for that. If they like continuous frequency, then we use a synchronous machines for a continuous speed, the same speed, constant speed ke liye. That types of. So what is the technique? What is the technique that is decided to select the right materials? Have you heard of this any technique? Yes, sir. As compared to the conditions of weather, using purpose, and temperature, that are the factors we are discussing for the choosing of material.
Have you heard of a technique called quality function deployment? Yes, the quality is a major point of view. No. So my question, please understand my question. Have you heard of a technique called quality function deployment, QFD? मैंने नहीं Okay. सुना इसके बारे में। You have not heard of. Have you heard of House of Quality? हाँ सर, ये थोड़ा बहुत पता है। क्या है हाँ, House of like, Quality? क्या होता है? These types of requirement of like that purpose we need to stabilize the or output result that are used for it. So, okay. And उससे क्या करते हैं फिर? आउटपुट रिजल्ट से करके फिर हम क्या करते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी में? सर क्वालिटी उसकी मटेरियल की जो क्वालिटी जो अपने को रिक्वायरमेंट है उसे सिलेक्ट करते हैं सर। कैसे सेलेक्ट करते हैं? वही पर्पस जो सर अपन को जो चीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को जिस चीज की जरूरत है हाँ. उस टाइप से उसका कंडक्टर है, मटेरियल है, जो भी उस चीज में यूज आएगा। तो उसका क्या प्रोसेस क्या है? अब आपको अब अगर प्रोजेक्ट में ये जो प्रोजेक्ट है वो मान लीजिए एक सबस्टेशन की प्रोजेक्ट है। अब एक छोटा सा सबस्टेशन, एक प्लांट का, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, इनकमिंग ट्रांसफार्मर का आपको वहां पे इक्विपमेंट डिसाइड करने हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? सर एज अगर सिस्टम अपन इंस्टॉलाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, वॉट्स वगैरह, पावर लोड हाउ मच आएगा, and then huge is company selection which we want to take a brand. So how will you decide company selection? Sir, as a rating purpose of and discussing about the old stabilizing, see the result of old stabilizing transformers. अच्छा, तो ये जो इसको एक तरह से अगर हम एक वर्ड दें डिजाइन इंजीनियर, ठीक है, क्योंकि आप मटेरियल डिजाइन करोगे, क्या मटेरियल के स्पेसिफिकेशन, मटेरियल का सिलेक्शन, मटेरियल का चॉइस करोगे, वेंडर सिलेक्शन करोगे, ठीक है? यस सर। तो डिजाइन इंजीनियर को मटेरियल सिलेक्शन के अलावा और क्या आना चाहिए? सर कॉस्टिंग। कैसे कॉस्टिंग? मटेरियल की कॉस्टिंग बेस्ट कहाँ से अपने प्रेफर होगी, लो कॉस्ट पे से अपन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर 4 मटेरियल हैं और 4 में से एक की कॉस्ट 150 रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, दूसरे की कॉस्ट 1,20,000 है, तीसरे की कॉस्ट 1,30,000 है, एक की कॉस्ट 1,10,000 है, तो कौन सा सेलेक्ट करोगे? एज डिपेंडेंसी क्वालिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द क्वालिटी। तो कैसे चेक करोगे क्वालिटी? The factors which are the केबल क्या होगा, केबल की कोर्स थिकनेस एक्चुअल है या नहीं है, अंडर गेज आता है, ओवर गेज आता है, दैट्स फैक्टर्स आर वी कैन चेक। फिर क्वालिटी चेक करते हो तो उसमें मालूम पड़ता है कि पहले जो 1.5 लाख और 1,40,000 वाले हैं वो ही रख सकते हैं, फिर क्या करोगे आप? तो बाकी 2 आउट हो गए, फिर 1,50,000 और 1,40,000 में से कौन सा सेलेक्ट करोगे? So 140, 140. क्यों 140 क्यों सेलेक्ट? If अगर company gives a good budget, then we prefer 1.5 lakh. क्यों कंपनी अगर बजट देगी तो क्यों 1.5 सेलेक्ट करोगे? कंपनी का पैसा फालतू में, क्वालिटी तो सेम है, 10,000 रुपए तो फालतू में फेंक रहे हो कि नहीं? नहीं सर, 140 is the first preference of our. तो 140 क्यों सेलेक्ट करोगे? Because of qualities are same and we get a 10,000 प्रॉफिट। तुमने मान लो आपने क्वालिटी सब ले लिया, वेंडर को सप्लाई का ऑर्डर दे दिया, प्रोजेक्ट में वो मटेरियल 6 महीने तक आया ही नहीं, फिर क्या करोगे? इट्स अ टर्म्स कंडीशन वी विल कैन डिस्कस बिफोर। क्या करोगे? टर्म्स एंड कंडीशन तो डिस्कस करते रहोगे, प्रोजेक्ट तो तुम्हारी डिले हो गई ना 6 महीना। नहीं सर, बिफोर द गिविंग ऑर्डर वी कैन डिस्कस विद कंपनी। तो वो तो बोलेगा हाँ सर कल ही सप्लाई कर दूंगा मैं। तो सप्लायर ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि मेरे को 6 महीना लेट करूंगा मैं, वो तो बोलेगा हाँ सर माल रेडी है, मैं तो आप बोलो ऑर्डर दो, पैसा दो, मैं इमीडिएट सप्लाई कर देता हूँ। तो कॉस्ट और क्वालिटी के अलावा भी कोई चीज होती है क्या? टाइमिंग। हाँ, सप्लायर रिलायबिलिटी, सप्लायर कितना रिलायबल है, कब सप्लाई कर सकता है, उसने क्या किया है,
इतनी Yes, sir. और वापिस से कभी मतलब- अगर जरूरत पड़ी तो भी पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है, वो चीज भी देखी हाँ, जाएगी। और दूसरी वो सप्लायर की रिलायबिलिटी कैसे चेक करोगे? सर पुराने कोई कस्टमर्स हो हाँ, उनसे गुड, मिलके। उनसे जाके पता करना पड़ेगा कि भैया ये आदमी कैसा है, जो बोलता है वो Yes, sir. करता है कि नहीं, टाइम पे सप्लाई देता है कि नहीं। Yes, sir. अच्छा, और क्या आना चाहिए? कॉस्टिंग आनी चाहिए, सप्लायर की रिलायबिलिटी चेक करनी चाहिए, क्वालिटी आना चाहिए, और क्या आना चाहिए एज ए डिजाइन इंजीनियर? सर एज ए डिजाइन इंजीनियर सर स्टोरेज प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल्स वगैरह अगर अपन मंगा रहे हैं किसी चीज को, उसको जो हाँ। लगाने में टाइम लगेगा, उसके पहले स्टोरेज उसका रखना पड़ेगा। हाँ, वो चीज और होनी चाहिए सर। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है उसका रिप्लेसमेंट एंड दैट्स आर इम्पोर्टेंट। आपने मान लीजिए एक मटेरियल 140 वाला मटेरियल लिया है, सप्लायर ने सप्लाई भी कर दिया, क्वालिटी भी अच्छी है, कॉस्ट भी ठीक है, पर आप साइट पे लगाने जाते हैं वो फिट ही नहीं बैठती है, फिर क्या करोगे? और रिप्लेसमेंट के और या फिर अगर होता है तो प्रोजेक्ट तो डिले हो गई ना, प्रोजेक्ट तो सर डिले, वो- प्रोजेक्ट की तो वाट नहीं लग सर, तो गई कि नहीं? ये चीज अपन सर पहले डिस्कस करके फिर ही उसको ऑर्डर करेंगे वो सर। तो फिर एक बोलेगा बार हाँ उससे सर लग जाएगी आपके, वो तो बोलेगा हाँ सर लग जाएगी। नहीं ना सर, सैम्पलिंग लेंगे सर पहले। क्या सैम्पलिंग लोगे? कंडक्टर हुआ या फिर जो भी उसका हुआ, उसको सैंपल लेकर के पहले चेक कर लेंगे सर। इसको क्या बोलते हैं? सर इसका डिजाइन फॉर terms मैन्युफैक्चर याद सुना नहीं। है? डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर सुना है? हाँ सर, क्या होता है डिजाइन फॉर सुना है। मैन्युफैक्चर? डिजाइन अपने सॉफ्ट कॉपी ऑफ डिजाइन होती है जो जिसका अपन कंस्ट्रक्शन वगैरह करने जा रहे हैं उस चीज की। नहीं, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर में ये होता है कि आप जितने जो मटेरियल्स के डिजाइन आप जो सेलेक्ट करते हो, वो मैन्युफैक्चरेबल भी होने चाहिए, वो इंस्टॉलेबल भी होने चाहिए, ये चेक करना पड़ता है। ओवर टू यू श्रीपति जी। तो ये बताओ, मान लो आपको कोई हाउस वायरिंग की टास्क मिली है, कोई बिल्डिंग है, तो उसमें क्या क्या स्टेप रहेंगे उसके? सबसे पहले क्या स्टेप रहेगी आपकी? सबसे पहले क्या देखोगे वहाँ पर? सर फर्स्ट अगर कोई हाउस वायरिंग मिली है तो सबसे पहले अपन उसके पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे कि किस किस पॉइंट पर सामने वाली कंपनी या फिर जो भी है उसको रिक्वायरमेंट है पॉइंट्स की, सप्लाई की। और उसके बाद में लाइनिंग क्लियर्स करेंगे, देन मटेरियल सिलेक्शंस और पैरेलल वगैरह सब जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन सेट्स करके उसके बाद में अप्लाई करेंगे सर। तो लोड कैलकुलेशन भी कुछ होती है क्या इसमें? लोड कैलकुलेशन एज रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जितने वो पॉइंट्स या फिर जितने सप्लाई मांगेगी एज अ मशीन्स, लाइट्स एक्सेट्रा, डिफरेंट कैलकुलेट करके सर करेंगे। और व्हाट इज कलर कोडिंग? कलर कोडिंग ऑफ वायर? Color coding, so mainly we can use a red, yellow, blue. Red for the main phase. If अगर 3 phase है and house wiring it's for all, always we use a single phase wiring. Therefore we can choose a 2-wire system, red and black. और केबल कौन कौन से टाइप की होती है? so overhead cables होती है अकॉर्डिंग जो टू open, कोर, अकॉर्डिंग टू मटेरियल? overheaded cables होती है सर जो कि विदाउट इंसुलेशन होती है। अंडरग्राउंड केबल्स होती है जिसमें कोर, इंसुलेशन एंड सेफ्टी पर्पस के हिसाब से जूट वगैरह यूज करके अपन उसको सेफ बनाते हैं। और हाउस केबल्स होती है जो पीवीसी इंसुलेटेड होती है ओनली। और अकॉर्डिंग टू कोर देखें कि कोर के हिसाब से कौन कौन सी होती हैं? 2 कोर 3 कोर सर केबल यूज लेते हैं। बेसिकली अगर हाउस वायरिंग के हिसाब से देखी जाए तो 2 कोर यूज में आती है केबल फॉर द सप्लाई चेन एंड मेन सप्लाई। और as a industrial purpose we can use a 4-wire cable because of 3 wire for the phase and single for neutral. और अकॉर्डिंग टू मटेरियल देखें तो कौन कौन से टाइप की होती हैं? If we need a long distance wire cable, we prefer aluminum cables, and for the short times and heavy load we prefer a copper cables. अच्छा, और ये what is insulation of cable? Insulation, so basically insulation is used for the safety purpose of shocking, and for that we use a PVC insulations and silicones and jute, that types of insulation we can use.
तो आपको इसके जो केबल के ऊपर अपन टेस्ट करते हैं, डिफरेंट टेस्ट, उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ का पता लगाना है आपको, तो कौन सा टेस्ट करेंगे उसके लिए? तो बेसिकली इसका पूरा कंप्लीट आंसर नहीं पता सर, बाकी उसमें टेम्परेचर राइजिंग का, हीट हीट एब्जॉर्बिलिटी एंड वेदर कंडीशन चेक्स करते हैं सर। डिफरेंट वेदर में उस इंसुलेशन पीवीसी के ऊपर क्या रेजिस्टेंस, असर आ रहा है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में बता सकते हो कुछ? यस सर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, IR टेस्ट। यस सर, ऑफ कोर्स सर। और करा नहीं है सर, बाकी चलो सुना ठीक है, है। पढ़ा है इसके बारे में।